Hello everyone. Today we will start from the first chapter, Human Geography, Nature and Scope of Class 12 Geography from the book Fundamental of Human Geography. This chapter is all about human geography, but let me tell you about geography. Geography is the explanation of Earth. You have studied it about in 11th class, but in 11th class you have studied the physical geography, the branch of geography. Geography is divided into two branches, physical and human. एंड फिजिकल जियोग्राफी की जो सब फील्ड्स हैं विच आर वाया जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कोस्टल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी एंड मैनी मोर. These physical geography you have studied in 11th class, but in 12th class we will study about human geography and the process which divide the physical and human geography. That means that we divide geography in two branches is called dualism, Dvaitvad. In human geography, we studied about social geography, culture geography, political geography, urban geography, rural geography, transport geography, and many more. So basically, what is human geography? It is synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface. Nature of human geography. Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by man. Elements of physical are land, water, soil, climate, vegetation, and fauna. Elements of cultural are transport, communication, settlement, crop, etc. So, in human geography, we basically studies about interrelationship of physical environment. That means about nature and socio-cultural environment created by man. That means ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो जो फिजिकल एनवायरनमेंट में चीज़ें आती हैं आपकी, दैट्स लैंड, वाटर, सोयल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फोना. एंड जो आपकी कल्चरल यानी कि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, वो चीज़ें हैं आपकी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट एंड क्रॉप्स. सो हियर आर द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. First one is given by Frederick Redgel. He is known as the father of modern geography. He defined human geography as the synthetic study of relationship between human society and the earth surface. मतलब कि जो भी आपकी ह्यूमन सोसाइटी एक्टिविटीज़ करती है और अर्थ सरफेस के साथ जो उसका रिलेशन होता है, उन चीज़ों को जो है उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी माना है. नेक्स्ट वन इज़ मिस एलन सैम्पल. मिस एलन चर्चिन सैम्पल जो आपकी अमेरिका से थी एंड शी वाज आल्सो डिसिपल और स्टूडेंट ऑफ फ्रेडरिक रेडजेल. अकॉर्डिंग टू हर, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. सेम चीज़ है कि जो भी अनरेस्टिंग मैन है यानी कि जो अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कार्य जो है वर्क करता रहता है, एंड द अनस्टेबल अर्थ जो आपकी हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो आपकी होती हैं जिनकी वजह से अर्थ अनस्टेबल हो जाती है और उसके ऊपर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनका रिलेशनशिप जो है इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी माना है. लास्ट वन इज विडाल डी ला ब्लाश ऑफ फ्रांस. अकॉर्डिंग टू ब्लाश, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन earth and man, a more synthetic knowledge of physical laws governing our earth and of the relationship between the living things which inhabited it. तो इनका भी वही मतलब है कहने का दैट जो भी आपका इंटर रिलेशनशिप है अर्थ और मैन के बीच यानी कि नेचर और ह्यूमन के बीच जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनका रिलेशन होता है, वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. And there are three concepts related to the development of human geography. First one is naturalization of humans. Man interact with nature with the help of technology. It is not important that what he creates, but with what tools he used to create it. Technology indicates the level of cultural development of society. Understanding the nature helps to create technology. Understanding of friction and heat help to discover fire. Laws of thermodynamics help to develop fast planes. Understanding DNA help to eradicate diseases. Knowledge about nature is extremely important to develop technology. The interaction between primitive society and nature is called environmental determinism. तो जो आपका environmental determinism है यानी कि naturalization of human है, इसका मतलब है कि जो आपका human है वो कोई भी एक्टिविटी करता है या कोई भी काम करता है या टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, वो हेल्प लेता है किसकी,
नेचर की. ही डेवलप दैट टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ नेचर. चाहे वो आपकी उसमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, पर फर्स्ट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर. आफ्टर दैट ओनली ही कैन मेक द फास्ट प्लेन. So basically that means we have to compromise with nature. Second concept is humanization of nature. With the help of technology, people understand the nature well. They move from state of necessity to state of possibilities. Human activities created cultural landscape. So it is called possibilism. So आदमी ने डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की. विद द हेल्प ऑफ दैट ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द नेचर वेरी वेल. आफ्टर दैट जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी उससे ज़्यादा आगे बढ़ के उसने जो है नई पॉसिबिलिटीज़ को है जो खोजना शुरू किया. ह्यूमन ने जो है अपने कल्चरल खुद के लैंडस्केप जो है डेवलप करने शुरू किए. तो इसको पॉसिबिलिज्म कहा गया, संभववाद, जिसमें कि ह्यूमन के हाथ में कंट्रोल था. वो नेचर को अपने हाथ तरीके से कंट्रोल कर सकता था, ऐसा उसका मानना है. लास्ट कॉन्सेप्ट इज नॉन डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर. It is middle path between environmental determinism and possibilism. The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity or nor is there a condition of absolute freedom. Sustainable development is the main aim. The new determinism maintains above balance between development and nature. So last concept जो आपका आया, फर्स्ट में हमने देखा कि ह्यूमन जो है नेचर के अधीन था, वो नेचर के अंडर काम करता था. सेकंड में हमने देखा कि जो नेचर है उसको आदमी ने समझ के अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काबू पा लिया. सो देर आर पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन टू कंट्रोल द नेचर. बट इन द लास्ट जो आपका ग्रिफिथ टेलर ने इस जो आपका न्यू डिटर्मिनिज्म की जो आपकी कॉन्सेप्ट था इसको डेवलप किया, उनका मानना था या उनका कहना था कि हमें जो है एक मिडल पार्ट ढूंढना पड़ेगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म दोनों के बीच में. क्योंकि हम जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते नेचर को, और ना ही नेचर जो है पूर्ण रूप से ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल कर सकती है. तो वी हैव टू बी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक सस्टेनेबल जो है रास्ता ढूंढना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सो एंड लास्ट में आपका जो है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम. जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते गए या उसमें जो डेवलपमेंट के काम हुए उसके बारे में हम देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉलोनियल, जिसमें जो पीरियड था आपका कॉलोनियल पीरियड, उसमें अप्रोच थी एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन. जो एक्सप्लोरेशन की जा रही थी, नई नई खोजें की जा रही थी, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा था. तो इसमें ब्रॉड फीचर थे इंपीरियलिज्म एंड ट्रेड लीड टू डिस्कवर मैनी लैंड्स. तो जो है ट्रेड की शुरुआत हुई, व्यापार करना शुरू किया गया. सो वन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद अदर कंट्रीज. सो फॉर दैट दे हैड टू ट्रेवल फ्रॉम देयर लैंड टू अदर्स लैंड. And second period is also colonial period. In this regional analysis, after they started doing trade with other countries, they also started doing regional analysis. उन्होंने उस क्षेत्र के बारे में, उस रीजन के बारे में जो है खोज पड़ताल करनी शुरू की. अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द होल. किसी एक पर्टिकुलर रीजन के एक छोटे से हिस्से को समझने से हम उस पूरे बड़े जो है आपका कहेंगे एरिया को हम समझ पाते हैं. तो उन्होंने दे हैव स्टार्टेड स्मॉल रीजनल एनालिसिस. आफ्टर दैट 1930 इंटर वॉर, जो आपका वॉर का पीरियड था 1930 के टाइम पीरियड में जब वॉर चल रहा था, तो एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच थी उसमें, फाइंड द रीजन फॉर द यूनिकनेस ऑफ ए रीजन. तो इन दैट टाइम पीरियड जियोग्राफर स्टार्टेड फाइंड द यूनिकनेस ऑफ ए रीजन कि भाई वट इज़ द रीजन फॉर ए पर्टिकुलर रीजन. जैसे कि किसी एरिया में किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग है या फिजिकल फीचर की वजह से अलग है, तो वो चीज़ें वहाँ पर उन्होंने देखना शुरू किया. 1950 टू 1960 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई टेक्नोलॉजी टू जियोग्राफी. यहाँ पे आपकी जो है टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई. उन्होंने जियोग्राफी को समझने के लिए टेक्नोलॉजी का नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट बनने लगे. 1970 एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल. जो आपके नए नए स्कूल जैसे अमेरिकन, फ्रेंच, डच जो है अलग अलग जियोग्राफर ने अपने अपने स्कूल जो बनाने शुरू किए, मतलब उन्होंने अपनी जो खोज की या यात्राएं की उनके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया. इसमें एमरजेंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी विद द पीपल विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स. तो इन स्कूल्स में जो लोग ट्रैवल करते थे, जियोग्राफर होते थे, उन्होंने जो है सोशियो पॉलिटिक रियलिटी को जो है एमर्ज किया, उसको उभारा कि भाई सोशल जो हमारा बिहेवियर है या पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उनको हम कैसे जो है और ज़्यादा डेवलप कर सकें.
Next one is 1990, post-modernization. Generalization and apply of universal laws to understand geography. तो 1990s तक आते आते क्या हो गया था, जो बहुत से जोग्राफर ने जोग्राफी की फील्ड में बहुत से काम किए और अलग अलग थ्योरीज अपनी जो है उन्होंने डेवलप की. सो उन थ्योरीज़ को जो है जो लॉ कहें या थ्योरीज़ कहें, उन्होंने उनको बनाया, डेवलप किया. फिर इस टाइम पीरियड में उनको जो है अप्लाई किया जाने लगा, उनको जनरलाइज किया जाने लगा और समझा जाने लगा. Last one in this chapter is fields of geography or subfield or sister disciplines which are related to the geography, because there are other also part of social science. So fields of geography में आपका social geography है, जिसकी सब field में आपका behavioral geography आता है जो आपका social psychology से related है. Geo of social well-being आपकी welfare economics से related है. Geo of leisure आपकी sociology से related है. कल्चरल ज्योग्राफी आपकी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है. जेंडर जियोग्राफी आपकी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है. हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है. मेडिकल जियोग्राफी आपकी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड है. अर्बन जियोग्राफी आपकी अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग से रिलेटेड है. पॉलिटिकल जियोग्राफी जो आपकी इलेक्ट्रल जियोग्राफी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस से, या आपकी मिलिट्री साइंस आपकी मिलिट्री जियोग्राफी से रिलेटेड है. पॉपुलेशन जियोग्राफी इज रिलेटेड टू डेमोग्राफी, and settlement geography is related to urban and rural planning. Economic geography is related to economics, and geography of resources are related to resource economics. Geography of agriculture to agriculture science. Geography of industries to industrial economics. Geography of tourism to tourism travel and management. So this is the first chapter of 12th class of geography.